Welcome once again to the Global Gyan. Myself Yash Naik Navre and my friend Yash Gandhi are here to present another interesting topic, which is in our Pulse of Progress series, and we are here with our episode number 3 already. The topic for today is understanding of core sector output. A very interesting topic which will help us understand the economy of our country, how is it growing, and overall I think this will be a very interesting session. क्या बोलता है यश? Absolutely. And again, here the idea is the same. We are simplifying the complex. This is what we do as Global Gyan. And we have a very good analogy to give to you guys. Oh yes. Firstly, I just want to share this कि ये इतने सारे news आते हैं and Nave, you can just share your views. I see lot of articles on core sector output. I got to know what is ICI. I did not know what ICI was. I realized both ICI and core sector is the same thing. So ICI full form stands for Index of 8 Core Industries, which is nothing but core sector. But I have no idea what it is. Absolutely. Because Gandhi, why will anyone who is not interested in understanding economics और मतलब जिसको इंटरेस्ट होगा ही बिल्कुल भी नहीं, why will they even want to read this? Because it is again a lot of jargon, a lot of numbers, some data, and this comes every month. तो कभी बोलता है ये ऊपर गया, ये नीचे गया, कोई तो इंडेक्स है. So like I always wonder कि यार apart from 2 or 3 people out of 100, I don't think many people would really want to read something like this. Actually, and I still don't know how it's going to be any different for me to read or not to read it. हाँ मतलब हम लोग सब पढ़ते हैं भाई, जीडीपी के नंबर आ गए, हर क्वार्टर में जीडीपी के नंबर्स आ गए, वो फॉलो कर लो. अगर वी आर लाइक इन द कॉर्पोरेट सेक्टर तो वी कैन फॉलो द बिजनेस रिजल्ट्स ऑन एवरी क्वार्टर. दैट इज मोर देन इनफ. व्हाट इज दिस लाइक core sector output, IIP, like there are so many different complicated things कि many people feel कि यार let us avoid this. What we will try to do here, because we went in the depths of it, हमने समझने की ट्राई की, and in the next 15 minutes we will help you understand the simplicity of this beautiful index which gives अपनी इकोनॉमी कैसी चल रही है उसका एक बहुत अच्छा क्या बोल सकते हैं इंडिकेटर. राइट गांधी? Actually, and the perspective that we are going to bring here is different as compared to what the other people or the economists give. Because 100%. this is what we are going to do as a normal, common, day-to-day person. क्या affect करेगा, कैसे we can understand. ठीक है, so let's go. Yes, we are students and we will make it so simple कि everyone will be able to relate. 8 को सेक्टर भी I am sure इसके बाद आपको सबको याद हो जाएंगे. So ICI results and periodic health report. Okay. Oh, तो ह्यूमन बॉडी के साथ हमने रिलेट करने का ट्राई किया है. Okay. एंड हमने बोला है कि कोर सेक्टर्स आर लाइक द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. बिकॉज इन द लास्ट एपिसोड वी डिस्कस्ड अबाउट जीडीपी कि होता क्या है जीडीपी. बट जीडीपी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मेजर. ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द कंट्री इन डिफरेंट सेक्टर्स अक्रॉस द सिटीज विलेजेस. तो मेजर कैसे किया जाएगा यार? इट इज सो डिफिकल्ट टू मेजर. तो हमने क्या सोचा, Assuming that GDP is a human body, then the core sector जो हम बात करेंगे अभी, right, that is going to be the vital organs which are going to drive the body, which means अगर vital organs सही है तो which means body अच्छी है. बेस्ट. तो मतलब पूरा बॉडी का फुल बॉडी हेल्थ चेकअप के अंदर भी देयर आर समथिंग दैट यू इवैल्यूएट. तो यहाँ पे हम लोग सिमिलर एनालॉजी के साथ लेकर आए हैं. तो गांधी भाई पहले दिखा देते हैं व्हाट आर द 8 कोर सेक्टर्स. लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन. फर्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी, coal, crude oil, refinery products, natural gas, steel, cement, fertilizers. These are 8 core industries. Yes. And ये 8 क्यों है? We speak about it in the following slides. अभी के लिए assume this to be the core sector and we'll explain why it's the core sector. Yes. अभी के लिए we are trying to just put an analogy for each sector कि ये काम कैसे करता है and how is it linked to a vital organ. Yes, definitely. चल, yes, electricity with nervous system, coal with our heart. Okay, very interesting. coal black होता है, heart लाल होता है, but ठीक है. crude oil को हम blood के साथ कर रहे हैं because crude oil flows, blood also flows. refinery products also flow. They are also mostly liquids जो refinery में बनते हैं, like crude oil से ही निकल के crude oil को और purify refine किया तो फिर we get refinery products like petrol, diesel, aviation fuel. फिर natural gas, तो gas है तो हमने सोचा भाई respiratory system से याद कर लो, lungs बेस्ट हो जाएगा उधर के उधर ही. फिर भाई स्टील को हमने बोला भाई स्टील इज लाइक स्केलेटन, स्टील इज द बैकबोन, फाउंडेशन है वो, फाउंडेशन है. तो स्टील को हड्डी बना दिया हमने भाई कि अपनी बॉडी की हड्डी का रिपोर्ट स्टील देता है. फिर स्टील के साथ साथ सीमेंट साथ में ही चलते हैं. बिल्डिंग में स्टील यूज हुआ
तो साथ में सीमेंट भी लगता है, तो बोन के साथ में वी नीड मसल्स, वो भी बस एनालॉजी बैठ गई है. एंड फाइनली फर्टिलाइजर्स, इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ 8 core इंडस्ट्रीज, बट बिकॉज इंडिया इज़ एन एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रीकल्चर के अंदर हमारे इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, इसी रीज़न से फर्टिलाइजर इज़ अ पार्ट ऑफ इट. एंड हमने क्या किया गांधी, उसका एनालॉजी डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ट, बिकॉज एग्रीकल्चर में फूड आता है, फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमको फर्टिलाइजर के साथ हमने उसको एनालॉजी लिंक कर दिया है. परफेक्ट. और इसका रीज़न बताते गांधी, इफ़ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू दैट. एब्सोल्युटली. फर्स्ट बताओ, व्हाई इलेक्ट्रिसिटी विद नर्वस सिस्टम? Again, nervous system, firstly it's the backbone of the body, वैसे electricity is the backbone of the economy, and second power कर दे रहा है, जैसे nervous system ensure signal दे रहा है etc, electricity does the same. तो सिंपल एनालॉजी है ये. जैसे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, वो यहाँ से वहाँ सिग्नल पहुँचाते हैं, वैसे ही पूरे कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होती है, तुरंत यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है. नेक्स्ट, कोल. भाई कोल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर भाई. कोल गिव्स फ्यूल टू प्लांट यूटिलिटीज को देता है, ये पावर जनरेशन में हेल्प करता है. इट्स गोइंग टू कोल, इफ कोल इज यूज्ड इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, द मैन्युफैक्चरिंग हब of the India, hence coal is the heart of the industry. मेन चीज भाई कि कोल, कुछ भी बोलो लोगों को पता होगा, we'll discuss it sometime later also, but coal is like सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में कोल से ही बनती है. and in the next 20-30 years also इंडिया में luckily we have a lot of coal, we don't have to import बहुत ज़्यादा coal, but वही कोल के दम पे हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं. तो लाइक इट इज़ द हार्ट ऑफ आवर बॉडी, जिससे पंप होता है पूरी जगह पे. फिर क्रूड ऑयल भाई. क्रूड ऑयल अगेन which is the lifeline for, अगर इमेजिन करो कि क्रूड ऑयल अगर नहीं हो रहा है, हमारे पास नहीं बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, देन भूल जाओ भाई, गाड़ी मोटर सब खत्म भाई, उसके बिना चल ही नहीं सकता. लिटरली गाड़ी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगा. करेक्ट. फिर उसी का भाई ले लिया हमने, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स. हाँ करेक्ट. तो उसको हमने बोल दिया प्लेटलेट्स. नहीं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में मतलब क्रूड ऑयल तो है ही जरूरी, बट उसके बाद हमारे पास लकीली इंडिया के पास BPCL, IOCL, रिलायंस, ये सब बहुत अच्छे अच्छे रिफाइनरीज हैं जो इतना क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स क्रूड ऑयल को ब्रेक करके पेट्रोल, डीजल ये सब बनाते हैं. तो वो हमारे लिए बॉडी के हिसाब से प्लेटलेट्स है. नेचुरल गैस, लंग्स अगेन समझा हमने, एयर अगेन लंग्स का लॉजिक लिया हमने, एंड अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट टू फ्यूल इंडस्ट्री. स्टील का तो भाई एकदम भाई कुछ भी बोलो, अगर स्टील इंडिया इज लाइक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, राइट? यस. हाँ, तो स्टील के बिना मतलब डिस्टेंट सेकंड भाई, चाइना के सामने हम कुछ भी नहीं है, वो भी कभी डिस्कस करेंगे. बट स्टील के अंदर इट इज गुड दैट वी आर सेल्फ सफिशिएंट भाई. स्टील इंपोर्ट करना पड़ जाता है वरना एक्चुअली. आज अभी अनफॉर्चुनेटली हो रहा है स्टील इंपोर्ट बिकॉज़ चाइना डंप करता है. प्राइस इज नॉट बिकॉज़ कि हम लोग कम प्रोड्यूस कर रहे हैं. भाई हमारे JSW स्टील, टाटा स्टील, लाइक सैल्यूट टू देम भाई, उनकी वजह से हम चल रहे हैं. इमेजिन स्टील, इफ स्टील प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा होगा, देन इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हाउसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. दीस टू आर द लार्ज कंज्यूमर्स ऑफ स्टील. डेफिनेटली. एंड अगेन सीमेंट इज लाइक अ बैकबोन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं अगर सीमेंट नहीं होगा. बिल्डिंग, फैक्ट्री जो बनाना है सीमेंट चाहिए ही. तो मसल्स लाइक द प्रॉपर ऐसा मस्कुलर करने के मसल्स. एंड फर्टिलाइजर भाई, फर्टिलाइजर से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, डाइजेशन के लिए ज़रूरी है. फर्टिलाइजर नहीं हुए तो अपने इंडिया का ऑलरेडी वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट हमारे जो एग्रीकल्चर, हमारी एफिशिएंसी है इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोड्यूस, वो स्टिल इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द एडवांस कंट्रीज. तो कहीं ना कहीं वी नीड अ लॉट ऑफ मॉडर्न सिस्टम्स, मॉडर्न प्रोसेसेस टू मेक दिस बेटर. एंड डोंट फॉरगेट, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग 18% टू द GDP. हाँ भाई, क्रेजी. और ये रहेगा ही. दिस इज नॉट गोइंग डाउन till like a long time. चलो परफेक्ट. तो आई एम होपिंग कि ये अच्छा रहेगा एज एन एनालॉजी. लेट्स डाइव डीपर. ओके, अभी ये हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट द एनालॉजी की 8 सेक्टर्स कौन से हैं. एंड अगेन वी आर नाउ शेयरिंग कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है. लाइक वी टोल्ड कि इफ वी गेट टू नो कि ये 8 में से कोई भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन वी नो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है आगे. करेक्ट. हेंस देयर शुड बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस, समथिंग दैट वी एंश्योर कि ढंग से काम करे. करेक्ट भाई. पूरे कंट्री की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड है. और अभी गांधी भाई ने जो पाई चार्ट फ्लैश किया, दैट इज शोइंग द प्रोपोर्शन. इट इज नॉट दैट ईच ऑफ दीज इज डिवाइडेड इक्वली, कि ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ देम आर गिवन 12.5% वेटेज. करेक्ट भाई? बिल्कुल. सबका वेटेज अलग अलग दिख रहा है. तो गांधी सबसे ज्यादा किसका है? Firstly, तो it is such a commendable thing.
व्हेन वी डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल वी विल शेयर कि हमारा कंट्री कितना वंडरफुल जर्नी लेकर आया भाई. लाइक वी वर सच अ कंट्री वेयर सर डेफिसिट में थे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के. अभी ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इज एट अ सरप्लस. और अभी हम गांधी वो रास्ते पे आ गए ना, लाइक नॉट गेटिंग टू मच डीपर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बट कि नाउ वी आर वांटिंग टू मेक मोर इलेक्ट्रिसिटी बट थ्रू बेटर मींस, राइट. So now electricity, so अभी के लिए split मोटा मोटी will be 60 to 40%, wherein 60% maybe 70% is through non-renewable energy. Now we are shift. और एक question आएगा and we are just preempting the questions here कि why only these 8 sectors? ऐसा हो सकता है कि कोई और इंडस्ट्री होगा which will be contributing more to the economy, but why is it not a part of the core sector output? तो उसका भी अच्छा इंटरेस्टिंग आंसर है, and this is because assuming say chemicals industry is a good contributor towards the economy. केमिकल्स क्यों नहीं ले रहे थे भाई? क्योंकि that's a dependent industry. यहाँ पे core sector is independent industries which are acting as a raw material or supply input to other industries. Correct. As well as in strategic, मतलब it's like a strategic importance होना चाहिए. So this is a interesting point that you have mentioned here as well in the chart कि why only these industries. So first, strategic importance, significant contribution होना चाहिए, and majorly the third important point is कि these should be raw materials to industries. These should be essential inputs. Right. And not dependent industries. Very nice. तो मतलब इस रीजन से क्लियर हो गया कि ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इनपुट है भाई. केमिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, बट सोच समझ के किसी विद्वान ने ही डिसाइड किया होगा कि इन पे फोकस करते हैं. तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन. करेक्ट. और अभी ये समझते हैं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये क्यों कर रहे हैं हम, ये क्यों समझ रहे हैं. हाँ भाई. तो दिस हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द जीडीपी. तो हमने जीडीपी एक्सप्लेन किया था. यस. You know the Q3 numbers, and now तो एक समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि जीडीपी का जो हमारा प्रीवियस वीडियो था that was on Q3 which was from October to December. ये जो अभी अक्टूबर ये जैन का नंबर्स आया है on 28th February which is the Jan numbers for core sector output, which means Jan numbers अभी publish हो गया है. We now know कि how the GDP will be progressing for Q4. This gives a fair understanding कि ठीक ठाक कर रहा है. Correct. अच्छा कर रहा है कि थोड़ा और खराब हो गया है जीडीपी. राइट. जैन के नंबर्स फरवरी एंड में आए, अभी मार्च एंड में फरवरी के नंबर्स आ जाएंगे. Correct. और वैसे करते करते बाय द टाइम हम अप्रैल एंड तक पहुंच जाएंगे, हमको तीनों महीनों के लाइक द 3 months ऑफ दैट क्वार्टर के नंबर्स का आइडिया आ जाएगा. करेक्ट. एंड गांधी ये वाला पार्ट जो है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी वांट टू मेक दिस वीडियो थोड़ा क्रिस्प. सो वी विल डिस्कस द लिंकेज ऑफ कोर सेक्टर्स विद जीडीपी, विद आईआईपी, ये सब इन द नेक्स्ट वीडियो. विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. बिल्कुल. तो आईआईपी इज लिखा भी है यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईसीआई से हमारा 27% ऑफ जीडीपी इम्पैक्ट हो रहा है. So ICI which is core sector contributes to 40% of IIP, again to be covered later. यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. अब भाई फटाफट to the last and the most important part, जो कि क्यूरियोसिटी होती होगी यार लोगों की, यार ये चलो ठीक है हमने बोला जीडीपी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट होता होगा. तो भाई होता कैसे है गांधी भाई ये, मतलब इज देयर सम मिनिस्टर या कोई एकदम धांसू सा पोर्टल होगा जहाँ पे जाके बटन दबाया कि तुरंत भाई इतनी बिजली, इतना सीमेंट, इतना ये, या नहीं. पर यहाँ पे ना जैसे ही तो देखा है, पता है मुन्ना भाई एमबीबीएस में आता था. हाँ. कि हर एक चीज के लिए हर एक डॉक्टर है. हाँ. पाँव का डॉक्टर अलग, आंख का डॉक्टर अलग, हार्ट का सर्जन अलग. हाँ, so यहाँ पे एवरी सेक्टर यू विल हैव अ डिफरेंट मिनिस्ट्री. और यही समझा है, यहाँ पे लिखा भी है. एंड हियर यू सी ऑन द राइट हैंड साइड यू सी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज व्हिच आर रेलेवेंट. और यस, डेटा कलेक्शन वाला बात मैं बता रहा हूँ सबसे पहले. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमें डेटा पब्लिश हो रहा है या रिलीज हो रहा है, दैट हैपेंस फ्रॉम डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. करेक्ट. और उन लोग बोलते हैं, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं मिनिस्ट्रीज को कि हमें डेटा चाहिए. अभी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब पीयूष गोयल की इंडस्ट्री, राइट? पीयूष गोयल की मिनिस्ट्री. ओके. लाइक पीयूष गोयल का एक वही बात है कि गांधी और मैं, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बोरीवली कांदीवली, वहाँ से ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो जस्ट देयर इज सम रिलेशन. ओके. तो यहाँ पे व्हाट दे डू इज, सो डीपीआईआईटी assuming right now say
Piyush Goyal and the ministry, they are going to ask different ministries. तो उन लोग बोलेंगे कोल मिनिस्ट्री को कि हमें कोल का डेटा चाहिए. उन लोग बोलेंगे नेचुरल गैस वाले और पेट्रोलियम वाले को कि हम लोग को रेलेवेंट डेटा दो. So they will reach out to 6 or 7 different ministries and they will ask for the data. Right. वो ministries क्या करेंगे? Ministries will then go to the relevant corporates. तो उन लोग corporates के पास जाएंगे और वहां से डेटा मंगाएंगे. Perfect. और वहां से जब डेटा आएगा, the data is then shared from the corporates to the ministry. Ministry में वो चेक होगा. उसका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग जैसे एमआईएस बनाते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वैसे एक एमआईएस बनेगा और वो शेयर होगा टू द डीपीआईआईटी और वहां पे वो कोलेक्ट होने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ इंडेक्स. फॉर एग्जांपल, अगर अज्यूमिंग कोल हमारा जनरेट हो रहा है से 560 मिलियन टन्स, ओके, अज्यूमिंग, और वो ये साल हुआ है या ये महीने में हुआ है, इसके पहले के महीने में 500 हुआ है, तो वी देन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन इंडेक्स. और इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद देयर विल बी सम 100 के बेसिस पे विल चेक अ बेंचमार्क कितना बड़ा है 100 के बेसिस पे, एंड देन रिलेटिव कंपैरिजन हो जाती है. गॉट इट. वो हमें रिफ्लेक्ट होगा इन द रिपोर्ट. समझ गए. एंड देन फिर रिपोर्ट पब्लिश होती है. रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. यस, गॉट इट. एंड देन और ये सेकंड पार्ट, तो यहां पे देख रहे हो एंड ऑफ द फॉलोइंग मंथ लिखा हुआ है. हां, करेक्ट. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रोविजनल एस्टिमेट. प्रोविजनल मतलब टेंटेटिव, बिकॉज डेटा बहुत ज़्यादा होता है, डेटा रिकंसिडर करने में टाइम लगता है, बट स्टिल दिस गिव्स अ प्रिटी डिसेंट पिक्चर. आई थिंक 70-80% तक का तो ये आइडिया दे देता है, होपफुली. बिल्कुल कितना चल रहा है. एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट विच इज कॉल्ड फाइनल एस्टिमेट, जो थोड़ा क्या बोले, थोड़े एडवांस लेवल पे डेटा जब आ जाता है, उसके बाद टिपिकली 2 महीने के लैग के बाद, मतलब 2 months लैग आफ्टर द प्रोविजन एस्टिमेट, वी गेट द डेटा फॉर एग्जैक्टली. तो जैन का अगर हमको डेटा फरवरी एंड में आया, तो उसका फाइनल एस्टिमेट आएगा हमारा नॉट मार्च, अप्रैल एंड में. करेक्ट. चलो, परफेक्ट. तो राइट में गांधी भाई एक बार फटाफट दिखा दो. कोल आता है कोल मिनिस्ट्री से, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस रिफाइनरी आता है पेट्रोलियम में नेचुरल गैस से. Yes, this is fertilizers from fertilizers production from Department of Fertilizers. Right. Steel वाला Ministry of Steel. Cement, because cement के लिए there isn't any industry, तो DPIIT के थ्रू ही आ रहा है ये. Okay. Electricity generation is through CEA, which is Central Electricity Authority. Perfect. ठीक है. तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इट इज़ अ ह्यूमंगस एफर्ट. इतने सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ से हमको काम करके फिर एक मिनिस्ट्री बैठती है जो कोलेट करके फाइनल नंबर्स रिलीज करती है. बिल्कुल. And they are released on the last day of the every month के last में you can look forward to. I think Last working day. as a habit, Gandhi, what we can inculcate for our audiences कि just keep a track last day of the month या first day of the next month में, usually newspapers में या फिर आपके news के apps में you get to see the numbers. उसका track रखना चालू कर लोगे तो you'll also go along with us. एक habit के लिए we can start doing it. Maybe Gandhi next video बनाएंगे तो we can walk them through the latest numbers and we will try and cover the Jan numbers. Perfect. Jan के provisional estimate numbers. Jan के provisional estimates, and then maybe every time the data gets released, हम एक short video कर सकते हैं. Perfect. ये थोड़ा डिटेल में वीडियो रहा because we are trying to explain the importance and the methodology. Actually एक last part, यहाँ पे every time हम जब भी ये वीडियो जब शूट करेंगे, डेटा रिलीज होगा, तभी we will be able to explain कि कौन से सेक्टर ने अच्छा किया, which means कौन सा वाइटल ऑर्गन्स में से कौन सा ऑर्गन अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है. करेक्ट. राइट. हाँ, हर बार ऐसा होगा कि भाई किसी के घुटने में दर्द है तो हड्डी में प्रॉब्लम है, किसी के खून में कुछ दिक्कत आ रही है, किसी के नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है. एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट विल बी वेरी फन एंड इजी फॉर पीपल टू रिमेंबर एंड रिलेट. एंड एक्चुअली उसका इम्पैक्ट भी ये है कि अज्यूमिंग हम ये टाइम में कुछ आपको बता रहे हैं जैन नंबर्स, हो सकता है 2 महीने बाद स्टील प्राइसेस अगर चेंज होगा, यू कैन देन कनेक्ट द डॉट सेइंग कि हाँ ये जैन वाले नंबर्स में अगर ऐसा स्टील आउट प्रोडक्शन कम हो गया था, डिप हुआ था, वी विल हैव टू देन इंपोर्ट इट. उसका लॉजिक देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. परफेक्ट. इफ इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. और अगर क्वेरीज नहीं भी हो, इफ यू वांट टू नो समथिंग मोर, तो भी डाल दो. मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन टू यू गाइस. परफेक्ट.